Good morning students. My name is Jyoti and you are watching Math5 channel. Today's topic about the selection of core subject or fifth subject, optional subject, right? I have told about in the main subject in previous video, and this video is about optional subject. First of all, three subject is main. Suppose if you are taking PCM, then PCM if this is the main subject, you have to take it is, and English is compulsory, right? English is compulsory. This is fourth, and fifth subject, that is optional. If you are going to opt PCM, I am talking about only PCM stream, okay? Not talking about all the stream. What are the option in PCM you can take, and why we have to select in these topics, in these subjects which are useful and which are better for your career and which are better for your score. There are two things. One is interest, other scope and third is percentage marks. Three things related to regarding to these options. Okay, in starting there are so many students, they want to become a computer engineer. First of all, मैं इको की बात कर लूँ सबसे पहले. These are the what are the optional subject? These are eco, physical education, fine arts, painting, bio, English, engineering, drawing, geospatial, CS, information program. About I don't know about it, more about this topic. It is given in the CBSE, so I have written it. First, I am talking about eco. Economics basically is the subject from arts stream, but you can take in PCM eco. Why you have to take eco? If you have an interest in economics, then you can take economics, and the opportunity and scope, there are wide scope of economics, and economics is very good and interesting subject, but it is slightly tough. If you have interest, then you take this optional subject. And स्कोर वाइज देख लूँ तो इसके स्कोर जो होते हैं, ये परसेंटेज मार्क्स जो है, वो एकदम से जितना आपको पीसीएम पढ़ने में मेहनत लगेगा, उतना ही मेहनत आपको इको पढ़ने में इक्वल लेवल में लगेगा. मैं एक बात सजेस्ट आपको कर दूं कि आप जब भी प्रिपरेशन करते हो तो योर focus, your goal, you have to score good percentage in 12th class, right? Percentage, it is not exact matter. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट तो है. बहुत ज़्यादा नहीं है पर है. कहीं पर क्या होता है कि जो आफ्टर इंजीनियरिंग या आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर हायर एजुकेशन, देयर इज ए वैकेंसी वेयर there is a column have written you have to score in 85% marks or 90% marks. So there are some criteria in very few jobs, but criteria is there. So इसके कारण कि आपके suppose that 80, अगर मान लो कि 84.05% marks you have scored in 12th class, but 85% is criteria, then 0.05 से 0.05 ये सपोज 0.5 है, 80.5, तो बस इतने से मार्क्स से you are not eligible for that opportunity, for that vacancies. Okay, and generally ये जो percentage marks है, वो टीचिंग लाइन में जो परसेंटेज मार्क्स वो होता है, वो
कंसीडर किया जाता है। बाकी हायर एजुकेशन में एडमिशन के एंट्रेंस के टाइम में, सपोज इफ यू हैव अप्लाइड फॉर हायर एजुकेशन, MSc, BSc या सम रिसर्च, इफ देयर आर 2 intake only, 2 seats एंड 2 seats में 3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे जिनका आया हुआ परसेंटेज मार्क्स आपसे बेटर है, दे विल सेलेक्टेड, तो आपका सिलेक्शन वहां पर रुक जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, compete कर जाओ आप, IIT कर जाओ या फिर यही मेंस एडवांस या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत अच्छी बात है। बट ये भी ज़रूरी है कि आपके जो परसेंटेज मार्क्स 12th के हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी ठीक है, आप एकेडमिक वो कंपटीशन को ही देखो, लेकिन सेकेंडरी पर ये परसेंटेज मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन परसेंटेज मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे इंक्रीज करें, कौन सा सब्जेक्ट हम ऑप्ट करें जिससे कि हमारा परसेंटेज मार्क्स बहुत अच्छा आए और जो है हमें एफर्ट भी कम करना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो, बहुत अच्छे हो, तो फिर आप लेना, अदरवाइज इकोनॉमिक मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप जनरल एवरेज बच्चे हो तो इकोनॉमिक्स मत लेना, क्योंकि वो इक्वल बर्डन आप पर आ जाएगा, उतना ही पढ़ना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन, ये जो मैंने सब्जेक्ट दिए डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल, जहां भी आप सेलेक्ट कर रहे हो जिस स्कूल को, उस स्कूल में कौन सा ऑप्शन है। बहुत सारे स्कूलों में क्या है, ये ऑप्शन ही नहीं होता। अभी फिजिकल एजुकेशन, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। फिजिकल एजुकेशन ऑलमोस्ट 99% स्कूलों में है, तो आप ये फिजिकल एजुकेशन इजीली ले सकते हो। और फिजिकल एजुकेशन का जो है 70 + 30% मार्क्स प्रैक्टिकल एंड 70% आपको थ्योरी में लाना है, एंड इट इज वेरी इजी टू स्कोर 80+ marks in physical education. It is very easy. If you are sincere, तो एग्जाम के 20 days भी पहले पढ़ोगे, you can score more than 80% marks. Okay? तो मैं प्रेफर करूंगी आप फिजिकल एजुकेशन लो। फाइन आर्ट्स बहुत सारे स्कूलों में है ही नहीं, तो फाइन आर्ट्स अगर है तो इसके भी प्रैक्टिकल्स में परसेंटेज मार्क्स ज्यादा होते हैं, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो। ये आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेगा, इनहेंस करेगा। पेंटिंग का भी सेम है कि पेंटिंग सारे स्कूलों में ऑप्शन नहीं है, अगर आपके स्कूल में है तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो, ये आपके बर्डन को कम करेगा। बायोलॉजी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड you have to take or not if you are interested for engineering, right? If you are interested for engineering, then biology, I prefer biology is not suitable for you, but you have to consider कि मैं 100% फोकस्ड हूँ, 100% मुझे इंजीनियर ही बनना है, देन बायोलॉजी मत लेना, क्योंकि बायोलॉजी के सिलेबस उतने ही ज़्यादा हैं और इसकी पढ़ाई उतनी ही ज़्यादा होगी जितना आप मैथ्स का करोगे, ठीक है। और इसके हैं 70 + 30 प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स ये हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं। जियो स्पेशियल में इसके बारे में बात करूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायो इज इंपॉर्टेंट, फिजिकल एजुकेशन। जियो स्पेशियल द स्प्लिटेशन ऑफ मार्क्स दैट इज 60-40, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं, बट जियो स्पेशियल में 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। तो 40 मार्क्स में आपके स्कूल वाले जो प्रेफर करेंगे और मिल जाता है, बहुत बातें बोलनी नहीं होती है चैनल के थ्रू, तो ये है कि आप इसमें तो कन्फर्म रहोगे, ठीक है ना। तो 60%, अब 60% कैसे स्कोर करना है, 6-7 टॉपिक है, पतली सी बुक है, 2 बार पढ़ोगे हो जाएगा। हाँ, इसका कोई हेल्प बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, बट 10 years के क्वेश्चन उठा के आप उसको सॉल्व कर लो तो ये जियो स्पेशियल हो जाता है एंड वेरी इजीली हो जाता है, एंड यू कैन स्कोर 95+ इन जियो स्पेशियल। वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी इजी एंड बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर साइंस, एवरीबडी नो इट, कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, नो डाउट इट इज वेरी गुड सब्जेक्ट and there is very good opportunity
if you are studying computer science in 12th class, right? But playing with the computer, playing with the game and studying computer science, both are the different thing. And इसके भी परसेंटेज, ये जो स्प्लिटिशन है ये है 70+30. ये नॉट बहुत इजी नहीं है कंप्यूटर साइंस. आपको सारे थ्योरी पढ़ने होते हैं एंड प्रैक्टिकल भी एक स्टैंडर्ड का होता है. तो अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बट इट इज नॉट वेरी इजी. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस देन ऑप्ट दिस सब्जेक्ट. अदरवाइज इफ ओनली आपका सपोज कि इंजीनियरिंग करना है, मैकेनिकल करना है, मुझे सिविल करना है, मुझे सिविल केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, दिस आर द ऑप्शन. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इवन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन तब भी मैं सजेस्ट करूंगी डोंट ऑप्ट कंप्यूटर साइंस. बिकॉज आगे चल के या बाद में 12th के बाद पेपर जो होते हैं उसमें आप कोर्सेज कर लोगे तो आपका हो जाएगा. बट अगर आपने 12th में ये रखा तो ये परसेंटेज मार्क्स बहुत बढ़िया नहीं जाता है, बहुत अच्छा मार्क्स परसेंटेज इसमें नहीं आ पाते हैं. तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो बहुत अच्छा है, आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, देन ऑप्ट कंप्यूटर साइंस. इट इज़ वेरी गुड सब्जेक्ट, स्कोप बहुत ही बढ़िया है. आगे चल के आप BSc वगैरह भी कर सकते हो इसमें. सपोज इंजीनियरिंग नहीं भी किए तो कर सकते हो. इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल ये CBSE में कुछ दिया हुआ है, बट आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज दिस. दीज आर द सब्जेक्ट एंड यू हैव टू ऑप्ट अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मार्क्स एंड कितना आप स्कोर करना चाहते हो और कितना आप स्कोर कर सकते हो. ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई. थैंक यू and watch my channel continuously. Happy Holi to you. Okay, thank you.